Chapter 8. The Hack Driver. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. ऑनर्स के साथ स्नातक होने के बाद मैं एक शानदार कानूनी फर्म में एक लिपिक बन गया। मुझे कानूनी विवरण बनाने के लिए नहीं बल्कि एक सस्ते निजी जासूस की तरह भेजा गया। I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. मुझे पीड़ितों के लिए शहर के कोने कोने तक जाना पड़ता था। कुछ बड़े और अधिक आत्मविश्वासी लोगों ने मेरी पिटाई भी की। I hated this unpleasant work and the sight of city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. मुझे इस अप्रिय काम से नफरत थी। मैंने अपने घर वापस भागने का भी सोचा जहां मैं एक वास्तविक वकील बन सकता हूं इस अप्रिय प्रशिक्षण अवधि के गुजरे बिना। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. इसलिए मैं एक दिन आनंदित हुआ तब उन्होंने मुझे 40 मील की दूरी पर एक देश भेज दिया, न्यू मुलियम नामक एक शहर में, ओलिवर लुटकिंस नामक एक व्यक्ति को बुलावा देने के लिए। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. हमें इस आदमी को एक कानूनी मामले में गवाह के रूप में चाहिए था और उसने हमारे सभी पत्रों को नज़रअंदाज कर दिया था। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or bare of any paint at all. जब मैं न्यू मुलियन गया तो एक साधारण ग्रामीण गांव को देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। इसकी गलियां मिट्टी की नदियां जैसी थी, लकड़ी की दुकानें जो भूरे रंग में रंगी थी या उसमें कोई रंग ही नहीं था। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. His working clothes were dirty and well-worn and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. उस जगह बस एक मात्र सुखद दृश्य स्टेशन पर डिलीवरी मैन का था। वह लगभग 40 का था, लाल मुंह वाला, हंसमुख और बीच में मोटा। उसके काम करने वाले कपड़े गंदे गंदे थे और उसका व्यवहार मिलनसार था। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वह लोगों को पसंद करता था। I told him to find a man named Oliver Lutkins. मैंने उससे कहा मैं ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को खोजना चाहता हूँ। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though, always up to something or other. He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop. I will tell you boy. Is there any hurry locating Lutkins? मैंने उससे कहा मैं ओलिवर लुटकिंस नामक एक आदमी को खोजना चाहता हूँ। लुटकिंस, करीब 1 घंटे पहले मैंने उसे इधर उधर देखा था, हालांकि वह पकड़ने में बहुत कठिन है क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. हाँ, मैं दोपहर की ट्रेन पकड़कर वापस शहर जाना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त था। I will tell you what, I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक वाहन है, मैं उसे निकाल लूँगा और हम एक साथ ड्राइव कर सकते हैं और लुटकिंस को ढूंढ सकते हैं। मैं उन अधिकांश जगहों को जानता हूँ जहाँ वह रहता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth
of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. वह इतना खुला और मिलनसार था कि मैं उसकी स्नेह से चमक रहा था। बेशक मुझे पता था कि वह व्यवसाय चाहता है, लेकिन उसकी दया असली थी। I was glad the fair money would go to his good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. मुझे खुशी थी कि किराए का पैसा इस अच्छे साथी के पास जाएगा। मैं प्रति घंटे $2 तक मोल भाव करने में कामयाब रहा और फिर वह अपने घर से पास के पहियों पर एक प्रकार का बड़ा ब्लैक बॉक्स लाया। He remarked, "Well, young man, here is the carriage," and his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. उन्होंने टिप्पणी की, ठीक है युवक, यह रही गाड़ी। और उसकी चौड़ी मुस्कान ने मुझे एक पुराना दोस्त बना दिया। ये ग्रामीण एक अजनबी को मदद करने को तैयार। उसने पहले ही ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का काम अपना खुद का बना लिया था। He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was a fool enough to play with him. He is not really bad, but it's hard to make him part with his money." उन्होंने कहा, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता युवा साथी, लेकिन मेरा अनुमान है कि आप लुटकिंस से कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं। वह एक भी प्रतिशत का भुगतान नहीं करता। पोकर गेम में वह अभी भी मुझ पर 50 सेंट का बकाया है। मैं उसके साथ खेलने के लिए पर्याप्त मूर्ख था। He's not really bad, but it's hard to make him part with his money. वह वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन उसे अपने पैसे से बांटना मुश्किल है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. If you want, I will go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me. यदि आप उससे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर संदिग्ध होगा और आपसे दूर भाग जाएगा। अगर तुम चाहते हो, मैं फ्रिट्ज के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ उसका पता, और तुम मेरे पीछे नज़रों से दूर रह सकते हो। I loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins. With the head driver's knowing help, I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. उसकी इतनी कोशिश देखकर मैं भावुक हो गया। अपने आप से मुझे शायद कभी भी लुटकिंस नहीं मिलता। हेड ड्राइवर की मदद से मैं उस आदमी को पाने में निश्चित हो गया। मैंने उसे अपने विश्वास में लिया और उससे कहा कि मैं लुटकिंस को बुलावा देना चाहता हूँ। उसकी जानकारी से हमारा मामला जल्दी सुलझ जाता, लेकिन उसने गवाह बनने से इनकार कर दिया था। The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. ड्राइवर ने गंभीरता से सुना। आखिर में उन्होंने मुझे कंधे पर मारा और हंस पड़े। Well, we will give brother Lutkins a surprise. ठीक है, हम भाई लुटकिंस को थोड़ा सरप्राइज देंगे। Let's start, driver. चलो शुरू करते हैं ड्राइवर। Most folks around here call me Bill or Magnuson. My business is called William Magnuson Fancy Carting and Hacking. यहाँ के अधिकांश लोग मुझे बिल या मैग्नसन कहते हैं। मेरा व्यवसाय विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग और हैकिंग है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज? ठीक है बिल, क्या हम फ्रिट्ज के लिए आगे बढ़े? यस, Lutkins is just as likely to be there as anywhere. Plays a lot of poker. He is good at deceiving people. Bill seemed to admire Lutkins'
टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। हाँ, लुटकिंस के वहाँ कभी भी होने की संभावना है। बहुत पोकर खेलता है। वह लोगों को धोखा देने में माहिर है। बिल लुटकिंस की बेईमानी की प्रतिभा देखकर उसकी प्रशंसा करने लगा। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. मुझे लगा कि अगर वह एक पुलिस वाला होता तो वह लुटकिंस को सम्मानपूर्वक पकड़ लेता और उसे पछतावे के साथ जेल में डाल देता। Bill led me into Fritz. Have you seen Oliver Lutkins around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. बिल मुझे फ्रिट्ज की ओर ले चला। वह खुशी से उससे पूछा कि क्या आपने आज ओलिवर लुटकिंस को कहीं आसपास देखा है? उसकी तलाश में उसका एक दोस्त आया है। फ्रिट्ज लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। ही हेजिटेटेड, देन एडमिटेड, यस, ही वॉज इन हियर अ लिटिल while ago. Guess he's gone over to Gustav's to get a shave. फ्रिट्ज ने मुझे बिल के पीछे देखा। वह झिझका और फिर स्वीकार किया, हाँ, वह यहाँ थोड़ी देर पहले था। लगता है कि वह शेव करवाने के लिए गुस्ताव के पास गया है। वेल, इफ ही कम्स इन, टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। ठीक है, अगर वह अंदर आता है उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रोव टू गुस्ताव्स barber shop. Again, Bill went in first and I lingered at the door. हम गाड़ी से गुस्ताव नाई की दुकान गए। फिर बिल पहले अंदर गया और मैं दरवाजे पर ही रहा। He asked not only the Swede but 2 customers if they had seen Lutkins. उन्होंने न केवल स्वीडन बल्कि 2 ग्राहकों से भी पूछा कि उन्होंने लुटकिंस को कहीं देखा है क्या। The Swede had not, he said angrily. I haven't seen him and don't care to, but if you find him, you can just collect that $35 he owes me. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. स्वीडन व्यक्ति ने उसे नहीं देखा। उसने गुस्से से कहा, मैंने उसे नहीं देखा और परवाह भी नहीं करता कि वो कहाँ है। लेकिन अगर आप उसे ढूंढते हैं तो आप उस $35 को जमा कर सकते हैं जो वह मुझ पर बकाया है। ग्राहकों में से एक ने बोला कि उसने शायद लुटकिंस को होटल के इस तरफ मेन स्ट्रीट पर चलते हुए देखा है। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit in Gustav's, he had probably gone to Greece for a shave. जैसे ही हम हैक में वापस चढ़े, बिल ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि लुटकिंस गुस्ताव्स में अपना क्रेडिट समाप्त कर दिया है तो वह शायद ग्रे के पास दाढ़ी के लिए गया हो। At Gray's barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. He had just left, probably for the pool room. ग्रे की नई दुकान पर हम केवल 5 मिनट के लिए लुटकिंस से चूक गए। वह अभी-अभी पूल रूम के लिए निकला। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. उसने अभी-अभी सिगरेट का एक पैकेट भी वहाँ से खरीदा और फिर बाहर चले गया। So we pursued him just behind him, just never catching him, for an hour till it was past 9 o'clock. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. इसलिए हम उसके ठीक पीछे उसका पीछा करते गए लेकिन उसे कभी नहीं पकड़ा क्योंकि अभी 1 बजे तक 1 घंटा हो गया। मुझे भूख भी लगी थी लेकिन मुझे बिल के अपने पड़ोसियों के बारे में असभ्य देश की राय इतनी पसंद थी कि मुझे शायद ही इसी बात की परवाह थी कि मुझे लुटकिंस अभी तक नहीं मिला। How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I will buy you lunch. फिर मैंने एक सुझाव दिया कि कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए दोपहर का भोजन भी खरीद लूँगा। Well,
I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only four of them and they are all bad. Tell you what we will do. We will get the wife to pick up a lunch for us. She won't charge you more than $50 and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we will go up to Waits Hill and enjoy the view while we eat. ठीक है, मुझे पत्नी के लिए घर जाना चाहिए. मुझे इन रेस्टोरेंट की इतनी परवाह नहीं है. उनमें से केवल 4 है और वे सभी खराब है. इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए. वे अपनी पत्नी से दोपहर को भोजन पे करवा लेते हैं और वह आपसे आधे डॉलर से अधिक का शुल्क नहीं लेंगे और यह आपको एक रेस्टोरेंट में मिले चिकने खाने से अधिक बेहतर एवं सस्ता होगा. और हम वेट्स हिल जाएंगे और हम खाते खाते सुंदर दृश्य का आनंद भी लेंगे. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. मुझे पता है कि शहर के युवा साथी के लिए बिल की मदद पूरी तरह से भाईचारे के प्यार की बात नहीं थी. उसे उसके समय के लिए भुगतान कर रहा था. अंत में मैंने उसे 6 घंटे दोपहर के भोजन के घंटे सहित के लिए भुगतान किया, जो कि बहुत ऊंची कीमत थी. But he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था. वह पैसे मैंने फर्म की तरफ से दिए, लेकिन यह ज़्यादा बेहतर रहता कि मैं उसे खुद भुगतान दूँ. उसका हंसमुख देसी ज्ञान मेरे जैसे लड़के के लिए बहुत ताज़ा थी जो शहर से बीमार था. As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. जैसे ही हम पहाड़ की चोटी पर बैठे, पेड़ों के बीच फिसले हुए चारागाहों और धारा को देखते हुए उन्होंने न्यू मुलियम की बातें की और उसमें सभी लोगों के शब्दों में एक चित्र चित्रित किया. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. उसने सब कुछ देखा. वह लोगों पर हंसता भी था, लेकिन उनकी मूर्खता भी समझता था और उन्हें माफ़ कर देता था. उसने मंत्री की पत्नी का वर्णन किया जिन्होंने सबसे जोर से चर्च में गाया था जब वह सबसे ज़्यादा कर्ज में थी. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him put on both a collar and a tie on the same day. उन्होंने फैंसी कपड़ों में कॉलेज के वापस आए लड़कों पर कमेंट किया. उसने उस वकील के बारे में बताया जिसकी पत्नी उसे एक ही दिन कॉलर और टाई दोनों लगाने में कभी सफल नहीं हुई. He made them all alive. On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. उसने उन सभी को जीवित कर दिया. उस दिन मैं न्यू मुलियन को शहर से बेहतर जानता था और इसे बेहतर तरीके से प्यार करता था. Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughs. He strengthened me. Bill कॉलेजों और शहरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने देश भर में यात्रा की थी और बहुत सारी नौकरियां भी की थी. अपने कारनामों से उन्होंने सादगी और हंसी का दर्शन वापस लाया. उसने मुझे मजबूत किया. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm, 3 miles north. ने
घास के मैदानों और जंगल के पास शांतिपूर्वक दृश्य को छोड़ दिया और ओलिवर लुटकिंस की खोज फिर से शुरू कर दी, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। अंत में बिल ने लुटकिंस के एक दोस्त को घेर लिया और उसे स्वीकार कर लिया और उसे अनुमान लगा कर कहा कि ओलिवर 3 मील उत्तर में अपनी माँ के खेत में गया है। We drove out there laying plans. हमने योजनाएं बनाते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। I know Oliver's mother. She is a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वह बहुत डरावनी है। बिल ने आह भरी। मैंने एक बार उनके लिए एक ट्रंक निकाला, लेकिन वो मुझे लगभग मार ही देती क्योंकि मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे कि वो कोई अंडे का डिब्बा है। She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat, and she sure can talk. I will bet Oliver's heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirts. वह लगभग 9 फीट लंबी और 4 फीट मोटी है और एक बिल्ली की तरह तेज, और वह निश्चित रूप से बात कर सकती है। मुझे यकीन है कि ओलिवर ने सुना होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह अपने छिपने के लिए अपनी माँ के पास चला गया। Well, we will try her, but you had better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. खैर, हम उसकी कोशिश करेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझे उनसे बात करने दें। आप भले ही साहित्य और कानून में महान हो, लेकिन आपको उनसे इस तरह बात करते नहीं आएगा। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me, I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son, Oliver." हम एक गरीब खेत में चले गए। हमें एक विशाल हंसमुख बूढ़ी औरत का सामना करना पड़ा। मेरे गाइड बहादुरी से उसके पास गए और कहा, तुम्हें याद है, मैं बिल मैग्नुसन, कार्टर और हैकमैन हूँ। मैं आपके बेटे ओलिवर को ढूंढना चाहता हूँ। I don't know anything about Oliver and I don't want to, she shouted. मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती, वह चिल्लाई। Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city, and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. अब यहाँ देखो, हमारे पास लगभग पर्याप्त बकवास पहले से है। यह युवक शहर में अदालत का प्रतिनिधित्व है, इसलिए हमारे पास इस ओलिवर लुटकिंस की सभी संपत्तियों की तलाशी करने का कानूनी अधिकार है। Bill made me sound very important, and the woman was impressed. She retired into the kitchen and we followed. बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बताया और महिला इससे प्रभावित हुई। वह रसोई में चली गई और हमने उसका पीछा किया। She seized an iron from an old-fashioned stove and marched on us, shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." She shouted and laughed at our frightened retreat. उसने पुराने जमाने के चूल्हे से एक लोहा पकड़ा और चिल्लाते हुए हम पर चढ़ गई। आप जो चाहे वो खोज सकते हैं, अगर आपको पहले जलने से कोई आपत्ति नहीं है, वह चिल्लाई और हमारे भयभीत वापसी पर हंसने लगी। I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house, since it was only 1 story high. Bill went round it, peering in at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. चलो यहाँ से निकलते हैं, वह हमारी हत्या कर देगी, बिल फुसफुसाया। बाहर वह कहा, क्या तुमने उसकी मुस्कान देखी? वह हम पर हंस रही थी। मैं सहमत था कि यह बहुत अपमानजनक व्यवहार था। हालांकि हमने घर की तलाशी ली, चूँकि यह केवल 1 मंजिल ऊंचा था। बिल इसके चारों ओर गया, सभी खिड़कियों में झांका। हमने खलिहान और स्थिर की जांच की। हम
यथोचित रूप से निश्चित थे कि लुटकिंस वहाँ नहीं थे। It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. मेरी दोपहर की ट्रेन पकड़ने का समय लगभग हो गया था, फिर बिल ने मुझे स्टेशन तक पहुंचाया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Mullion to practice law. शहर के रास्ते में मुझे लुटकिंस को खोजने में अपनी विफलता के बारे में बहुत कम चिंता हुई। मैं बिल मैग्नसन के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त था। वास्तव में मैंने कानून का अभ्यास करने के लिए न्यू मुलियन लौटने का विचार किया। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? अगर मुझे बिल इतना गहरा और समृद्ध इंसान जैसा मिला होता, तो क्या मैं फ्रिट्ज और गुस्ताफ और 100 अन्य धीमे धीमे सरल बुद्धिमान पड़ोसियों से प्यार नहीं करता? I pictured an honest and a happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. मैंने विश्वविद्यालयों और कानून फर्मों की सख्त सीमाओं से परे एक ईमानदार और खुशहाल जीवन का चित्रण किया। मैं उत्साहित था। मुझे एक खजाना मिल गया था। मैंने जीवन का एक नया तरीका खोजा। But if I did not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset. Next morning, the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. लेकिन मैंने लुटकिंस के बारे में ऑफिस के लोगों जितना नहीं सोचा। मैंने उन सभी को परेशान पाया। अगली सुबह मामला अदालत में आ रहा था और उनके पास लुटकिंस होना ही था। I was shameful, useless fool. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. मैं एक शर्मनाक, बेकार मूर्ख था। उस सुबह मेरा होनहार कानूनी करियर शुरू होने से पहले ही लगभग समाप्त हो गया था। The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. I was ordered back to New Mullion, and with me went a man who had worked with Lutkins. I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. चीफ ने लगभग मुझे मार ही दिया था। उन्होंने संकेत दिया कि मैं खाई खोदने से अच्छा काम कर सकता हूँ। मुझे न्यू मुलियन में वापस जाने का आदेश दिया गया और मेरे साथ एक आदमी गया जिसने लुटकिंस के साथ काम किया था। मुझे दुख है क्योंकि यह बिल के साथ फिर से मेरे आवारापन को रोकेगा। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. जब ट्रेन न्यू मुलियन पहुंची तो बिल स्टेशन पर उसकी गाड़ी के पास था। अजीब तरह से वह बूढ़ी बाघिन लुटकिंस माँ वहाँ बिल के साथ बात कर रही थी और हंस भी रही थी, लेकिन वो उससे झगड़ नहीं रही थी। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him." ट्रेन की सीढ़ियों से मैंने अपने साथी को बिल की ओर इशारा किया और कहा, वह एक अच्छा साथी है, मैंने उसके साथ एक दिन बिताया था। He helped you hunt for Oliver Lutkins? उसने आपको ओलिवर लुटकिंस का ढूंढने में मदद की? Yes, he helped me a lot. हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की। He must have. He is Lutkins himself. उसने आवश्यक ही की होगी क्योंकि वो खुद ही लुटकिंस है। What really hurt me was when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. मुझे वास्तव में यह दुख हुआ कि जब मैंने उन्हें बुलावा दिया तो लुटकिंस और उसकी माँ मुझ पर ऐसे हंसे जैसे कि मैं कोई 7 साल का एक उज्जवल बच्चा हूँ। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे एक कप कॉफ़ी के लिए अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए पूछा। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday.
मैंने उन्हें आपके बारे में बताया और वे आपकी ओर देखने के लिए उत्सुक है। लुटकिंस ने खुशी से कहा, वह शहर के एकमात्र लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत याद किया। थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचिए। When the lawyer reached New Mullion, did Bill know that he was looking for Lutkins? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? जब वकील न्यू मुलियन पहुंचा तो बिल को पता था कि वो लुटकिन को ढूंढ रहा है। आपको क्या लगता है कि बिल लॉयर को बेवकूफ़ बनाने वाले प्लान को कब लेकर आया? Question 2. Lutkins openly takes lawyer all over the village. How is it that no one lets out the street? Hint. Notice that the hack driver asks the lawyer to keep out of sight behind him when they go into Fritz. Can you find other such subtle ways in which Lutkins manipulates the tour? Lutkins खुले में लॉयर को पूरे गांव ले जाता है, लेकिन कोई इसको इस राज के बारे में क्यों नहीं बता सका? हिंट। ध्यान दीजिए कि जब हेड ड्राइवर ने लॉयर को उसके पीछे खड़े रहने को बोला जब वह फ्रिट्ज की शॉप में गए थे। क्या आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जब लुटकिंस उसको बेवकूफ़ बनाता है पूरी टूर में वो ढूंढ सकते हैं क्या? Question 3. Why do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? आपको क्या लगता है कि लुटकिंस के पड़ोसी लॉयर को मिलने से क्यों इतने परेशान थे? Question number 4. After his first day's experience with the head driver, the lawyer thinks of returning to New Mullion to practice law. Do you think he would have reconsidered this idea after his second visit? जब लॉयर न्यू मुलियन से अपने पहले दौर से लौट आया तो उसको वहाँ वापस जाने की बहुत इच्छा थी। आपको लगता है जब वह दूसरी बार गया तब भी वह वही सोच रखता है? Question number 5. Do you think the lawyer was gullible? How could he have avoided being taken for a ride? प्रश्न 5. क्या आपको सही में लगता है कि कोई भी उस लॉयर को आसानी से धोखा दे सकता है? वह उस सवारी में बैठने के लिए कैसे बच सकता है? क्या आपके पास इसके लिए कोई उपाय है? टॉक अबाउट इट। इसके बारे में बात कीजिए। Question number 1. Do we come across persons like Lutkins only in fiction or do we encounter them in real life as well? You can give examples from fiction or narrate an incident that you have read in the newspaper or an incident from real life. क्या आपको लगता है कि लुटकिंस जैसे लोग साहित्य में ही पाए जा सकते हैं या फिर अपनी असली दुनिया में भी पाए जा सकते हैं? कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कभी ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो या फिर आपने ऐसा कोई इवेंट न्यूज़पेपर या कहीं पर सुना हो। Question number 2. Who is a con man or a confidence trickster? प्रश्न 2. बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान कौन है या फिर आत्मविश्वास चालबाज कौन है?